स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ट्रैवल चैनल पर। तो आज हम आए हैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में। बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं पूरी साथ संगत के लिए। जितने भी डेरा सच्चा सौदा में लोग आए हुए हैं, संगत आई हुई है, उनसे कुछ सवाल करेंगे और देखते हैं इन सवालों का क्या जवाब मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सारी साथ संगत से सवाल पूछने। तो चलिए चलते हैं। वीर जी का आज एक्चुअली ਵਿਆਹ भी है ना वीर जी, ਤੁਸੀਂ आशीर्वाद ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਗੇ। हाँ जी ਵੀਰੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਐ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਗਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਿਆਉਣ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਿਓਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਬਲਾਕ ਬੋਹਾ ਜੀ। ਬਲਾਕ ਬੋਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ 5 ਕਾਰਨ? 5 ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ही नहीं सकते, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ भी नहीं सकते। इस बार बाबा जी डेरे में आए हैं, पधारे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। जब कभी भी गुरु जी आते हैं हमारे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। जैसे बच्चे बिछड़े हुए होते हैं अपनी माँ से और काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं, रोते चिल्लाते रहते हैं, और जब जैसे माँ मिल जाती है बच्चे को तो काफ़ी हद तक उनकी बहुत सारी जो वो जिम्मेवारियाँ वो पूरी कर देती है माँ। उस तरह से हमारे गुरु जी हैं जो सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई है जी भैया जी और ने। लग रहा है कि ये बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से नहीं जुड़े हुए। 2-3 और सवाल हैं जी। लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं लोगों के लिए जो डेरे से जुड़े हुए हैं कि तुम अभी भी डेरे जाते हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो ये सवाल करते हैं? जो ये सवाल करते हैं एक्चुअली क्या है कि वो इग्नोर आदमी, उन्हें पता ही नहीं है। जो आदमी डेरे सच्चे सौदे से जुड़ा ही नहीं हुआ है, जो कभी आया ही नहीं है, गुरु जी के वचन कभी सुने ही नहीं है, डेरे को कभी माना ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया ही नहीं है, कोर्ट ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, केवल शक के आधार पर गुरु जी को दोषी करार दे दिया, और फिर भी शक के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करना, ये पूरा का पूरा एक राजनीतिकरण दिया गया है ताकि डेरे सच्चे सौदे से जो संगत जुड़ी है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ सबको पता है, जो आदमी यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने देखा हुआ है, मैंने 96 में नाम लिया था। क्या बात है जी। तो गुरु जी ने तो हमें जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी दी है, जितनी बुराई हैं उन बुराइयों से हम बहुत दूर हो गए हैं। ठीक है जी। यदि हम अपने बचपन में नाम नहीं लेते तो हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत लाइन पे चले जाते। लेकिन हम अब जब हम सही रास्ते पे हैं तो कोई भी गुरु जी के बारे में गलत करता है तो हमारी तो रूह मानती नहीं है इस बात को, क्योंकि हमने देखा है, समझा है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है उस अनुभव को, और जब हम शेयर करते हैं किसी के सामने तो जो समझदार आदमी उस चीज़ को कंसिडर भी करते हैं। दुनिया यहाँ देखने आती है और नाम लेके चली जाती है। बिल्कुल जी। जब गुरु जी अपने मिशन पे गए हुए थे सुनारिया धाम में, उसके बाद भी संगत बहुत जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन शासन तो ये चाहता था कि यहाँ पे कोई आए ना, कोई करे ना, क्योंकि इनका जो माइंड सेट था वो कुछ और था। देखो जी, ये जितनी भी दुनियावी जानकारी आदमी के पास होती है, कोई भी संत मत आए वो उससे ऊपर चलता है। एक गूंगे को आप यदि गुड़ दोगे तो वो स्वाद बताए कैसे? बिल्कुल महसूस कर सकता है ना, वो ये कहेगा आप भी खा के देखो, मिठास बहुत है। सही बात है जी, बहुत नेक वचन है, बहुत नेक सोच है भैया की, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। एक छोटा सा सवाल और जी, ऐसे 3 छोटे से कारण जो आपको डेरे में आना और डेरे में आकर बाबा जी के वचन सुनने में मजबूर कर देते हैं, ऐसे 3 कारण कौन से हैं? 3 नहीं जी, बहुत 3,000 3 लाख 3 करोड़ है जी। 3 तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है। सबसे जरूरी है अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के लिए। और भैया बहुत सारे लोग हैं जैसे नाम शब्द ले लेते हैं, उसके बाद नशे करने लग जाते हैं, नाम शब्द की बेइज्जती भी करने लग जाते हैं,
देखो जी, वो मन के वसीभूत होके मन का शिकार हो जाते हैं, और यही कारण था। आपने एक सवाल पूछा, हम लगातार जुड़े रहते हैं तो हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। क्या आप न्यूज़ देखते हो? न्यूज कौन से? ये जो अखबार देखो जी, करंट अफेयर्स हैं, वो उसके साथ तो इंट्रोडक्शन होता ही रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है वो तो डे टू डे लाइफ का। बाकी हम वो नेगेटिव न्यूज ना देखें तो बढ़िया है, तो बढ़िया। पॉजिटिव न्यूज देखें। आईएएस कैसे बन सकते हैं, आईपीएस कैसे बन सकते हैं, है ना जी, आगे बढ़ कैसे सकते हैं, बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें न्यूज़ देखनी चाहिए। ये नहीं वो मर गया, उसने बलात्कार कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। इन न्यूज़ से मैं तो ये चाहूँगा आप और अपने बच्चों को, जितने भी आपके रिलेटिव किथन किन्स हैं, सबको ये बोलो कि ये नेगेटिव न्यूज़ मत देखो। यही सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव करते हैं और यही समाज में कुरीतियों का कारण है आज के टाइम में। इस छोटी सी गुड़िया मिली है, उससे थोड़े से सवाल पूछते हैं। हाय बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बाजी सिरसा डेरे में आए हुए हैं इस बार, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। संडे को क्या करने आए हो डेरे में? सेवा। सेवा करने आए हो? क्या सेवा की आपने? पानी की और वो सब। पानी की और पानी की पानी की थी। कैसा लगा आपको सेवा करके? अच्छा लगा। आप हर रोज डेरे आते हो? कभी कभार। कभी कभार। क्या क्या अच्छा मिलता है यहाँ से सीखने के लिए? बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही मिलता है। क्या क्या मिलता है? क्या सीखा आज तक आपने यहाँ से? नशा नहीं करना चाहिए और बुरी कभी झूठ कपट नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, एक बहुत ही प्यारा सा बंदा मिला हमें, जिसने अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ है डेरा सच्चा सौदा का नाम शब्द लिया है, और उससे पूछते हैं कि क्या मोटिव था, क्या कारण था डेरा सच्चा सौदा का नाम लेने का। कैसे हो भैया? बढ़िया भाई बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको डेरा सच्चा सौदा का नाम लेकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो ऐसे उम्मीद नहीं थी डेरे का नाम ले के, जैसे मेरे दोस्त और फोर्स करते थे ये किसका नाम ले रहे हो आप, ऐसे वैसे इस चक्कर में मत पड़ो, फायदों में रहोगे, ऐसे वैसे। तो अब हमारे घर वाले ने फोर्स करके मुझे दिलवा दिया नाम, तो अब मुझे बढ़िया लग रहा है कि हाँ नशे पत्ते से दूर रहे, बढ़िया। तो इसलिए अब मैं इन चीज़ों से भी दूर हूँ, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। बहुत सारे लोग, मीडिया होगी और देश के भी बहुत सारे लोग गलत बोलते भी हैं, कुछ अच्छे भी बोलते हैं। जो गलत बोलते हैं को पता नहीं है या जो भी ये लगा लो, हाँ उनको वो आप एक क्या मिनट कहना आके चाहोगे? देख ले यहाँ पे कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पे, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, यहाँ पे आके देख ले। जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इस बारी पिताजी परोल ते सिरसा डेरे च आया दूजी बारी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਐਤਕੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹੋਗੇ, ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ 1987 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਹਿਤ ਇੰਸਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਕਾਫਨੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਗਏ ਖਾਸੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ? ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਬਸ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਜਨਤਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਚੱਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा, तुसी इन्ने सोने सोने जवाब देते। आप सभी को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, हमारे पूछे हुए सवाल अच्छे लगे होंगे, साथ संगत के जवाब अच्छे लगे होंगे, और उनके इमोशंस, उनकी श्रद्धा, उनकी भावनाएं अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही और मज़ेदार डेरे के व्लॉग्स देखने के लिए और हमारे पर्सनल व्लॉग्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।
अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।